Assalamu alaikum students. Hello, how are you? Today we are going to discuss adverb and its kinds. So before going to start our topic, I want to clearly mention that if you are going to crack the adverb, you must have the knowledge of verb, because adverb is such a topic for which you must have a knowledge about verb. So what is the reason that you need to know the verb when you are going to discuss about adverb? So let's start our topic. Remember that we are going to discuss adverb and its kinds. The very first question rise in your mind: what is adverb? So when you are going to discuss adverb, I mentioned that you must have the knowledge of verb. So why I said that? Because adverb is a word which use to add something in the meaning of verb, adjective, and another adverb. Look at the definition again. We analyze about our definition, but when you have a clear concept about the definition and you just adjust or digest your definition, so you are well prepared to understand what is the actual concept of adverb. So adverb is a word which is used to add something in the meaning. Add something in the meaning of a verb, another adjective, or an adverb. So that is the function of adverb. कि इस्तेमाल इसका कब करेंगे? जब आपके पास कोई वर्ब है और आप उस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हैं. That how we all remember that what is verb? Verb is a action word. So remember that when we going to explain the condition, the time, the place, the manner, the degree, the frequency, the intensity of our action, so it is termed by grammatically as adverb. Let's have an example. For example, I said we have an example: I speak. So what is an I? Subject. And what is an speak? Verb. So when I add a word, remember, of course, for example, I add a word: I speak slowly, fastly, politely, so what is the meaning of these words? Slowly, fastly, and politely. What are they
doing here? What are the function of these words? All these words are being used to add something in the meaning of a verb, speak. The word verb we have is a speak. Speak is used here as a verb, and slowly, fastly, and politely. All these words describing the action, that how the action took place. So once again we revise our definition. Adverb is a word which used to add something in the meaning of a verb. Slowly, fastly, politely. All they are used for speak. I speak slowly, I speak fastly, I speak gently, politely, and any word which is used. ये क्या कर रहे हैं? ये मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं. किसके मीनिंग में? स्पीक के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं. Here, so I think so that students, all of you have now well disciplined and well prepared concept about the adverb. So now move forward. The next step, when you have learned about, understood about the adverb, so next topic is to explore its kinds. So now move forward. Here we have another topic, another progress in the topic that we have studied adverb. So now we are going to discuss about the kinds. So kinds क्या है कि ये हमने इस चीज़ को पढ़ लिया कि verb जो है, adverb जो है बेटे, कि वो वर्ब के मीनिंग में क्या कर देगा? इजाफा कर देगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको हमें वाइडर सेंस पे समझने की एक क्लिस्टर क्लियर जो है वो हमारा एक्शन जो है वो हो जाएगा. तब क्या सारे एडवर्ब्स, ये सारे लफ्ज़ जो हैं, क्या ये इक्वली परफॉर्म करेंगे? नेवर. वी हैव मैनी एग्जांपल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. सो एज लाइक we have a kind of adverb. So I'm going to mention the very first. We start with manner. So how it work? Adverb of manner. How it work? It works. It used to describe that how an action took place. That how an action took place. That is the key word to understand the adverb of manner, that how an action took place. So indicating words कौन से हो सकते हैं आपके पास? ऐसे कौन से words हैं जिनसे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये adverb of manner है? अब इसके इंडिकेटर वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? तो हमने पहले लिखे भी हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल लिखा गया है वर्ड स्लोली, ओके, फास्टली, जेंटली. ये तमाम वर्ड्स जो हैं आप क्या करेंगे बेटा? इनका इस्तेमाल जो है हम मैनर को करेंगे. All these words are being used to describe that how an action took place. So now move forward. Let's have an example of इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं, देन हम मूव करते हैं आगे की जानिब. फॉर एग्जांपल, he
he completed his task fast. So what is done? Completed and task. तो टास्क कैसे परफॉर्म किया गया है? टास्क को फास्टली परफॉर्म किया गया है. द वर्ड फास्टली इज एडवर्ब ऑफ मैनर. और ये क्या कर रहा है? ये आपके टास्क को बता रहा है कि आपने इस टास्क को जो है वो कैसे काम मुकम्मल किया है, फास्टली, तेज़ी के साथ मुकम्मल किया है. नाउ मूव फॉरवर्ड. हम दूसरी एग्जांपल के ऊपर चलते हैं. मैनर, टाइम. हम कीवर्ड लिख रहे होंगे, ठीक है इसके. तो कीवर्ड टाइम के लिए क्या होगा? डेट इट डिस्क्राइब that how an action टाइम के लिए क्या आएगा? इट डिस्क्राइब दैट व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस. इसके इंडिकेटिंग वर्ड्स कौन से होंगे? इंडिकेटिंग वर्ड्स क्या हैं बेटा? कि ये एग्जाम्पलरी वर्ड्स हैं जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा दैट दीज आर द स्पेसिफिक वर्ड्स. व्हेन एवर यू हैव दीज वर्ड्स, तो रिमेंबर दैट दीज वर्ड्स आर यूज एज अ एडवर्ब ऑफ मैनर. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेंशन द एडवर्ब ऑफ टाइम. सो इंडिकेटिंग वर्ड्स जो हैं इंडिकेटिंग वर्ड्स जो हैं हमारे पास होंगे वो हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है टुडे, yesterday and all these words are used as a adverb of time. All they mention that describe to use that when an action took place. So let's have an example of it. I met him yesterday. So here we have yesterday. yesterday किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे. और ये बेटा क्या कर रहा है? ये आपके मेट के वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, उसका टाइम बता रहा है कि किसी से भी आप मिले, कब मिले? yesterday. हम अगली टाइप से मूव करते हैं. अब थोड़ा सा हम तेज़ी के साथ बेटा इसको जो है वो चीज़ों को चलाते हैं ताकि आपकी ये जो लेक्चर है वो ज़रा आपके लिए ज़्यादा टाइम ना ले आपको. थर्ड टाइप पे मैनर, टाइम एंड प्लेस. प्लेस के लिए बेटा क्या है? इंडिकेटिंग वर्ड यूज टू डिस्क्राइब that where the action took place. Where the action took place, प्लेसमेंट बताएंगे आप. इसी एग्जाम्पल को फॉर एग्जाम्पल जो हम इसमें ऐड कर लेते हैं. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एग्जाम्पल आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल he play a match at stadium. So the word played is used as verb and stadium as adverb of place.
Fourth one, adverb of degree, used to describe that what is the intensity of action. So remember that adverb of degree used to mention the intensity or the interest, that how you performed an action. आपका रवैया, your behavior, your attitude towards your action जो है वो कैसा है. For example, he done his job with much interest. With much interest. So यहाँ पर बेटा क्या है कि that he is doing his job, he done his job, वो अपना काम कर रहा है with, कैसे कर रहा है, with much interest, बड़ी तवज्जो के साथ. That is the degree. So now we are going to conclude our topic. The last type is frequency. It is used to describe that how many time an action took place, कि कितनी बार कोई काम जो है वो उसको किया गया, कितनी बार वो काम को आपने रिपीट किया. फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर्स को मेंशन करेगा. इसके लिए बहुत ही आसान सी एग्जांपल जो है हम ले लेते हैं. कोई भी फॉर एग्जांपल जो है he has revised this book many times. He has रिवाइज की जगह पे जो है वो हम ज़्यादा कॉमन वर्ड कर लेते हैं जो सेंसिबल लगेगा हमें बुक के लिए, आपको समझ भी ज़्यादा जल्दी आ जाएगा. ही हैज़ रेड दिस बुक मैनी टाइम्स, कई बार जो है वो किताब को जो है वो पढ़ चुका है. ठीक है. सो ऐसे जो है बेटा आपको क्या होगा, ये हमारा टॉपिक जो है जस्ट on the edge we are going to complete our topic. And adverb, its types. Firstly we started with our definition, verb, adjective and another verb. क्या करेंगे, something in the meaning of a adverb, verb में ऐड हो जाएंगे. एग्जाम्पल मैंने आपको दी, यहाँ पे हमारे पास speak verb था, हमने उसके नीचे जो है वो ये words लिखे जो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं क्या कर रहे हैं, स्पीक को जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं. एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैनर्स, द काइंड ऑफ एडवर्ब. सो फर्स्ट वी हैव अ मैनर, दैट हाउ एन एक्शन टुक प्लेस. whenever you are going to indicate in your adverb of manner, question how. When you how, that how he completed his work task fastly. so ये indicating word होगा आपके लिए. time, टाइम के लिए क्या है कि डिस्क्राइब व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, कब हुआ, टाइम बताएंगे आप. तो इंडिकेटिंग वर्ड के लिए टुडे, यस्टरडे आ गया. एंड फॉर एग्जांपल आपके पास है वर्ड है आई मेट हिम यस्टरडे. आस्क व्हेन यू मेट विद हिम यस्टरडे, यस्टरडे इज़ द आंसर. सो व्हेन, जब भी आपने एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करना है तो आपने क्या करना है, वहाँ पे व्हेन से क्वेश्चन करना है. एडवर्ब ऑफ प्लेस पे आ जाए, यूज डिस्क्राइब वेयर एन एक्शन टुक प्लेस, एक्शन कहाँ पर वकूफ़ पज़ीर हुआ, हैपनिंग क्या है, प्लेसमेंट क्या है उसकी. सो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ ही प्लेड एन मैच एट अ स्टेडियम. सो एट स्टेडियम इज़ द प्लेस वेयर द एक्शन टुक प्लेस. ही प्लेड अ मैच, मैच कहाँ पे खेला गया है, एट स्टेडियम.
एंड द सेकंड लास्ट डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यूज टू डिस्क्राइब इट व्हाट इज़ द इंटेंसिटी। ये बड़ी अच्छी, ये मुझे मेरी फेवरेट यही है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, इंटेंसिटी, योर बिहेवियर। फॉर एग्जांपल आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप इसको कैसे सुन रहे हैं, आप टीचर के ऊपर कैसे आपकी बिहेवियर जो है उसको सुनने का, ये आपकी इंटेंसिटी का इंटरेस्ट का शो करेगा। सो मच इंटरेस्ट। एंड द लास्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी, यूज टू डिस्क्राइब दैट हाउ एन एक्शन, हाउ मेनी टाइम एन एक्शन टू प्लेस, कितनी बार उसको रिपीट किया गया। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ रेड दिस बुक मैनी टाइम्स, कई बार उसने किताब को पढ़ लिया, 2 टाइम, ट्वाइसली, ये सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं बेटा। इस तरह से जो है वो हमने अपने टॉपिक को पढ़ा, एडवर्ब इसके काइंड्स को पढ़ा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज माई टॉपिक। होप्स हो कि आप सब ने जो है वो इसको बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा एंड प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, बिकॉज ग्रामर जो है ये प्रैक्टिस का नेम है और द फेमस प्रवर्ब कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गुड बाय स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।